Okay, students, this is the class of algebraic graph theory, and I am Dr. Waheed Ahmed Khan. Today we are going to discuss about the very basics of graphs along with its types, and afterward we will discuss also the basic terminologies which will be useful in forthcoming lectures as well. We also include some special types of graphs and subgraphs as well. So let us start with the definition of the graph. What is graph basically? A graph consists of the vertices V and edges E. Sometimes we call vertex a node as well. I will give you the example here. Look at this one, this graph here. This A, B, C, D are the vertices, and these are the edges E1, E1, E2, E3, E4, and F5. And you are seeing that the two vertices are connected by one edge. It's okay. Just this, look upon the second one definition. If the graph has an finite number of vertices, we will call it infinite graph. However, if the graph has a finite number of vertices, we will call it a finite graph. So mainly we can concern about the finite graph. So let us see the other uh, terminologies of graph, the very basic terminologies. A graph is said to be an empty. Graph is said to be an empty here is said to be an empty if it does not contain any edge. However, it may contain a vertex or vertex. You can see that here I have given you the example. Two vertices are there, but there is no any edge. On the other hand, if the graph does not contain any vertex, then we will call it a null graph. And if a graph has only one vertex, then we will call it a trivial graph. So now we come across through the types of undirected graphs. So there are mainly three types of undirected graphs. First one is the simple graphs, multigraphs, and then pseudographs. And remember that these we will discuss all undirected graphs now, and then afterward we will come towards the directed graphs as well. So let's check the definition of the simple graph. Look at the screen. This is the set theoretic definition of a simple graph. That the simple graph is the binary relation basically correspond to the binary relation which is symmetric and reflexive. It's okay. And mainly we define the simple graph. A simple graph consists of the vertices V or nodes, and the edges which are unordered pairs. Look at this one. This is very important that U is related with V or joined with V, or V is joined with U. Both have the same meanings. It's okay. In a simple graph, each edge connects to two different vertices, and no two edges connect the same pair of vertices. Look at this. These are the same pair of, suppose we take the pair of vertices A and B. You are seeing that only one edge is lying between these two vertices A and B. It's okay. So you are not allowed to put any other edge like this in this graph. So the simple graph does not contain two edges between any pair of vertices. The next is the multigraph. You are seeing here that the multigraph, like a simple graph, or you can say that it is basically the extension of the simple graph. Now you are allowed to put more than one edge between two vertices or two nodes. As seen in this graph, here you are seeing that this is suppose vertex U, this is vertex V, and now there are two edges. Let us suppose this is edge E1 and this is edge E2. So we call it a multi-graph. That's why you are seeing here. And also you are seeing
in between these two vertices, you have a number of edges 1, 2, and 3. So in a multigraphs, we are allowed to have more than one edges, more than one edge. Uh, Application side of this multiple graph you are seeing here, there, let us suppose it is a city B and it is a city C, and these two are the roads. Cities are denoted by the vertices. Suppose it is V1, it is V2, okay, and this is E1 edge, and this is E2 edge. It's okay. Now E1 has the meaning that you are going through this road. You are covering the 90 kilometers or 90 miles, suppose, and through E2 you are going about, you are covering about 80 miles or 80 kilometers. It's okay. So it has its own importance. This graph has its own importance. Now next one is the pseudograph. It is the further extension of the multiple graphs. Now you are allowing the loops, okay, like a multigraph, but edge is connected a node to itself. Node to itself is called a loop. You are seeing in this graph here that it is the loop. It is also the loop. So in pseudograph, the loops are allowed. And look at the definition, mathematical definition, G equal to VEF, where V is the set of vertices, E is the set of edges, and F is the function. And you are seeing that each edge is E1 is connected to U1. However, if you look upon the definition on the previous slide, that here you have mentioned that U should not be equal to E. So that is the difference basically. Now come towards the further terminologies of the graph. First one is the adjacent edges. When we will call the two edges E1 and E2 are adjacent. Look at this graph. Look at this graph here. Two edges are adjacent if they share a common vertex. Look at this one. This edge E1, this is the edge E1, this is the edge E2, and these two edges are sharing this common vertex B. Okay. And similarly, E2 and E3 are also adjacent because they are sharing the common vertex C here you are seeing. It's okay. But on the other hand, if you look upon E1 edge and E3 edge, they are not adjacent edges now because they don't care and they don't share any common vertex among themselves. Similarly, we have the definition of the adjacent vertices, when the two vertices will be adjacent. Okay, the two vertices are said to be adjacent if they are connected by an edge. Now A and B, you are seeing here A and B are adjacent vertices, B and C are adjacent vertices, and C and D are adjacent vertices. But you are seeing that A and D are not an adjacent vertices. Okay. Now, furthermore, the degree of the graph. So first we will study about the degree of the vertex, how we will define the degree of the vertex. Here, the degree of the vertex of the simple graph is basically the number of edges connected with it. Look at this one, the degree of A. Degree of A, only one edge is connected with it. So we are saying that the degree of A is 1. And it is the specific vertex. If the vertex has degree 1, we call it a pendant vertex. On the other hand, the degree of the B, you are seeing that two edges are connecting B. This is this one. So the degree of B is 2. Similarly, the degree of C, you are seeing here two edges are connected with the vertex C. So you can say that the degree of the vertex C is 2. Similarly, if you look upon this one, the vertex F, no edge is connected with it. So that's why its degree is 0, and we call it an isolated vertex. It's okay. And this is the special
kind of vertex. You look upon this one, that it has one edge and one loop. Always remember, keep in mind that the loop will give you the degree 2 twice. So having loop always a degree twice, so 2 plus 1 is 3. So the degree of the vertex D will be 3. So on the next slide, you are seeing the handshaking shaking theorem. This is we are discussing about the undirected graph. So let us suppose what the handshaking theorem describe. Look at this one. If you have the graph G equal to V1 and which is undirected, then the sum of the degrees of all the vertices will be equal to twice the number of edges. 2 into number of edges. You can check it one. Okay, why? Because each edge is contributing twice. What is the degree of पास 1 plus 1, क्योंकि B के साथ दो एजेस कनेक्टेड है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से C की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपके पास। D की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने, 1 2 एंड 3, सॉरी 2 into 3 equal to sum the degree of all the vertex, that is कितना आ जाएगी जी, सारे वर्टिसेस की डिग्री को ऐड करेंगे आप तो 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 1 6। तो ये प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है कि वाकई 2 into number of edges will be equal to the sum of all the degrees in the graph you are seeing here. It's okay. तो इसके प्रूफ में सिंपल डायरेक्ट यही है कि each edge contributes twice to the degree count of all the vertex, and both the left hand side and right hand side of this equation equal to the twice है। और फिर यहाँ आप जो देख सकते हैं कि basically think about the graph where the vertices represent the people at the party and an edge connects two people who have shaken hands. So I think you understand that one. नेक्स्ट हम चलते हैं जी हैंडशेकिंग थ्योरम से हम क्या कौन से प्रॉब्लम जो है ग्राफ थ्योरी से कंसर्न सॉल्व कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ग्राफ विद 10 वर्टिसेस। अब एक ग्राफ है जिसके 10 वर्टिसेस हैं और हर वर्टिक्स की डिग्री कितनी है जी, 6 है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर, उसके नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे आपके पास। तो ये हैंड शेकिंग थ्योरम जो है आपके पास जो प्रीवियस स्लाइड पे चला है, यानी कि आपके नंबर ऑफ एजेस ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस विल बी द डिग्री सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस। और अगर सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस करेंगे तो ईच वर्टिस की डिग्री है 6, तो टोटल वर्टिक्स कितने हैं जी, 10। तो ये कितने हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 10 टाइम, ठीक है जी। 10 into 60 10 into 6 which equal to 60, so you can write by handshaking theorem 2m equal to 60 and m will be equal to 30। so आपने देखा कि उसके फिर पॉसिबल एजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस वो हो सकते हैं आपके पास 30 हो सकते हैं जी, ठीक है जी। बट इफ यू लुक अपॉन सेकंड एग्जांपल है that if the graph has 5 vertices, suppose एक ग्राफ के जो 5 vertices हैं and each vertex have the degree 3 और हर vertex की डिग्री है 3, is it possible? अगर देख लें कि जो आपका हैंडशेकिंग थ्योरम है, अगर ईच की वर्टेक्स की डिग्री 3 है और टोटल 5 हैं तो सम ऑफ डिग्रीज कितना आ जाएगा जी, हाँ जी। ईच की है आपके पास 3 और टोटल है 5, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 15 आ जाएंगे। अब सूरत हाल ये हो जाएगी आपके पास बाय हैंडशेकिंग थ्योरम 2m equal to 15। हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एजेस नाउ, बिकॉज on the right hand side you are seeing that it is an odd number, so it is impossible to sketch a side type of graph which has 5 vertices and each vertex has a degree 3. So this is the corollary of the handshaking theorem. Basically you are seeing on the slide as a theorem here, okay. An undirected graph has an even number of vertices of odd degree, यानी कि इस तरह में ये बताया जा रहा है कि जो और डिग्री के वर्टिसेस होंगे वो या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे। और क्यों होंगे ये, लेट अस सपोज वी टेक let us suppose we take v1 the vertices of even degree
and V2 the set of vertices of odd degree. और हमारे पास ग्राफ जो है वो जी इक्वल टू विद एम एजेस, और उसके एजेस जो हैं आपके हमारे पास एम है. देन वी कैन राइट 2m equal to by handshaking theorem 2m equal to sum of the degrees of all the vertices. अब पहली बात तो ये है कि आपके पास ये जो है v जो है ये है इट मस्ट बी इवन, इट मस्ट बी इवन. इट्स ओके. क्यों कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो v1 के अंदर है उसकी डिग्री जो है इवन है, तो उनको सम अप करेंगे तो जाहिर बात है इवन आएगा आपके पास. ऑन द अदर हैंड जरा यहाँ पे आके देखें नेक्स्ट में, यहाँ पे V2 आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है जिसमें हर वर्टिस की डिग्री क्या होती है जी आपके पास ऑड होती है. लेकिन बाय हैंड शेकिंग थ्योरम आपको पता है इट शुड बी इक्वल टू 2m, बिकॉज सॉरी ऑन द राइट हैंड साइड यू आर सीइंग दैट 2m टू मेक इट बैलेंस इफ इट इज ऑड. सपोज कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये इनकी समेशन जो है ऑड आएगी आपके पास, ठीक है ना जी. तो फिर ज़ाहिर बात है ये तो आपके पास इवन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को सम अप करेंगे तो जो ये लेफ्ट साइड पे 2m आ रहा है ये वाला, तो फिर ये इवन तो नहीं रहेगा, ज़ाहिर बात है. फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको भी इवन होना चाहिए, ठीक है ना जी. और हम देख भी लेंगे नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल्स में. तो दिस इज सो वी ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इन एनी ग्राफ. आप चेक कर सकते हैं कोई भी ग्राफ स्केच करके, ठीक है ना जी. नेक्स्ट अब आगे अभी तक जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वी वर डिस्कसिंग अबाउट द अनडायरेक्टेड ग्राफ्स. नो वी कम अक्रॉस थ्रू द डायरेक्टेड ग्राफ. ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या होंगे? डायरेक्टेड ग्राफ आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. लेकिन इसमें वर्टिसेस तो वही चीज़ है लेकिन एजेस मेन रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना जी. जो आपके एजेस होंगे द सेट ई ऑफ डायरेक्टेड एजेस होंगे बेसिकली, ठीक है जी. यानी कि उनका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन लेस नहीं होंगे. इससे पहले जो अनडायरेक्टेड, इसी वजह से हम कह रहे थे कि यू टू वी और वी टू यू बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है ना जी. तो ईच एज इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस. अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें तो ऑर्डर्ड पेयर्स की आ गई है. यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि यू वी इज इक्वल टू वी यू, ये चीज़ आप नहीं कह सकते इन डायरेक्टेड ग्राफ में. इट इज़ नॉट इक्वल बेसिकली बिकॉज क्यों जी, बिकॉज द डायरेक्टेड एज इज एसोसिएटेड विद द ऑर्डर पेयर इज सेड टू बी. ये वाला जो आपके पास बन रहा है ये ऑर्डर पेयर, इसका मतलब है यू टू वी, यानी कि यू एक वर्टेक्स ये है, वी एक वर्टेक्स ये है, तो ये एक एरो के साथ कनेक्टेड है. और वी टू यू है वो आपके पास डायरेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है ना जी. अब जरा देखते हैं कि इसके साथ जो बाइनरी रिलेशन है जो कनेक्टेड होगा सेट थ्योरेटिक वेज विच नीड नॉट बी सिमेट्रिक. जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, ठीक है ना जी. तो जरा यहाँ पे देखें आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ की ये एग्जांपल है नीचे देखें. तो अब आपके एजेस जितने भी हैं, ये एज हो गया आपके पास, ये एज हो गया आपके पास, और ये एज हो गए, ये सारे के सारे एजेस जो हैं डायरेक्शन है इनकी आप देख रहे हैं एरोस के साथ ज्वाइंट हुए हैं. तो इसके अंदर आप देखें तो ये वर्टेक्स है आपके पास, तो वही हैं वर्टेक्स ए बी एंड सी. जबकि आपके पास जो है ए टू बी जो है आपके पास E1 है, बी टू सी जो है ये आपके पास E2 है, एंड ए टू सी जो है एज बन जाता है आपके पास E3 है. अब इस ग्राफ को अगर आप मेंशन करना चाहें तो ये ठीक है, आप ए बी मेंशन कर सकते हैं. इट मीन इट हैज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. लेकिन बी ए में आपका एलिमेंट इस ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है एरो जो कि बी से ए के जन, यानी ये वन वे रोड आप समझ लें, ठीक है जी, डबल रोड सॉरी, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग है आपके पास. नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसकी कुछ टाइप्स के ऊपर. सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ जो है आपके पास पहला जो बनता है जी, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ में यही है कि इसके पास कोई लूप नहीं होगी और ना ही डबल एरो होगा ऑन द सेम डायरेक्शन. ये आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है डबल, लेकिन ये डबल नहीं है. आप जरा देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज बी टू सी एंड द अदर वन इज this vertex is, suppose this is I call it E3 and this is E2 and
This is E2. So E2 is from B to C. This is the edge E2 and this is the edge E3. तो डायरेक्टेड ग्राफ में ये चीज जो है अब कहाँ से सी टू बी है एंड दे आर नॉट इक्वल, यू आर सीइंग है। ठीक है, सो इन सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली आपको कोई लूप नहीं है, कोई सेम डायरेक्शन में दो एरोज आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं दो एजेस नजर नहीं आ रहे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। अब डायरेक्टेड मल्टीग्राफ जो है आपके पास मल्टीपल एजेस अलाउड है, इवन तो कुछ ऑथर तो इसमें लूप भी अलाउड करते हैं डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में। ठीक है ना जी, लूप उसको फिर लूप डायरेक्टेड मल्टीग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है ना जी, ये देखा आपने डायरेक्टेड मल्टीपल डायरेक्टेड एजेस। ओके, और इसकी एग्जांपल में क्या आप ले सकते हैं कि वी अगर आपके पास वेब पेजेस है तो ई हाइपर लिंक्स उस पेज के ऊपर जो होते हैं दे आर द मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है ना, यहाँ जरा देखें इस ग्राफ को एनालिसिस आप करें कि ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं। ठीक है ना जी, और ये देख रहे हैं आपके दोनों एजेस जो हैं, ये दोनों एजेस ठीक है ना जी सेम डायरेक्शन में है, और ये नहीं अलाउड था आपकी प्रीवियस जो सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ था। ठीक है ना जी, और लूप भी है। अब जरा इस एग्जांपल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे, इन दिस डायरेक्टेड मल्टीग्राफ द मल्टीप्लासिटी, ये मल्टीप्लासिटी बेसिकली जो है कि ए टू बी एजेस कितने हैं आपके, ये मल्टीप्लासिटी नंबर ऑफ एजेस पे डिपेंड करेगा। जबकि मल्टीप्लासिटी ऑफ बी टू सी कितने बन रहे हैं, दो एजेस हैं और दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इसकी इसकी मल्टीप्लासिटी कितनी होगी, ये 2 हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर सपोज यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्शन में यहाँ पे लगा देता हूँ ये, तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लासिटी ऑफ ए नाउ। हाँ जी, अब ए टू बी, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए टू बी विल बी रिमेन्स 1। On the other hand, you get the multiplicity of b to a is 1 now. Before this, the multiplicity of b to a was 0. Okay जी, next one is some terminologies का समझ। जिस तरह के हमने इससे पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की थी, उसमें एडजेसेंट वर्टेक्स डिफाइन किया था और एडजेसेंट एजेस डिफाइन किए थे। यहाँ भी जो है हम जो है डायरेक्टेड ग्राफ में ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो किस वक्त हम कहेंगे जी कि u is a vertex, u is adjacent to v and v is adjacent from u, both have the same meaning। और फिर edges के वाले से e comes from u, okay, and e goes to v, e connects to u and e goes from u to v, the initial vertex। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज बेसिकली सिमिलर हैं। ये देख रहे हैं आप कि आपके पास एजेस और वर्टेक्स की एडजेंसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि अब हम ये कह सकते हैं कि u इज एडजेसेंट टू v, लेकिन इसकी एरो अगर हम ये कर दें, चेंज कर दें, सपोज इस तरीके से एरो करें, तो देन v इज एडजेसेंट टू u। लेकिन अगर वही एरो रहेगी तो फिर हम इसको कहेंगे कि e कम्स फ्रॉम u टू v और u इज एडजेसेंट टू v। इट्स ओके। या फिर इसको हम जहाँ से उसकी टेल होगी उसी को आप इनिशियल, और जहाँ पे उसका हेड आएगा उसको आप टर्मिनल वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो ज़रा यहाँ पे एक एग्जांपल को भी और डिग्री को भी ज़रा पहले डिफाइन कर लेते हैं कि डिग्री जो होगी हमारे पास। इससे पहले हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो चीज़ पढ़ी थी उसमें यह था कि डिग्री बेसिकली द नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद द वर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन की बात हो रही है डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ में, तो फिर इसकी एक डिग्री इन होगी और एक डिग्री आउट होगी। डिग्री इन क्या होगी, इज द नंबर ऑफ एजेस विच टर्मिनेट एट वी, जिसका एंडिंग पॉइंट वी होगा। सपोज मैं यहाँ पे अगर यू रख दूँ, एक मेरे पास वर्टेक्स यू है और एक मेरे पास वर्टेक्स वी है। ठीक है ना जी, तो इसकी इन डिग्री जो होगी आपके पास, सपोज मैं इसको यहाँ डायरेक्शन पे रख देता हूँ, ये इन डिग्री ऑफ v इज 1 एंड आउट डिग्री ऑफ u इज 1 आल्सो। तो इन डिग्री को नेगेटिव डिग्री माइनस v के साथ ऊपर माइनस का साइन आएगा सबस्क्रिप्ट के तौर पे,
और डिग्री पॉजिटिव जो होगी वो आपके पास जिसके ऊपर v जो होगा वो इनिशियल वर्टेक्स आपके पास आएगा। ठीक है जी। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि लूप जो है बेसिकली वो आपके पास, अच्छा लूप जो है बेसिकली वो कंट्रीब्यूशन क्या करेगी कि एक इन डिग्री पे, इन डिग्री को एक 1 यूनिट रेज करेगी और आउट डिग्री को भी 1 यूनिट रेज करेगी। अगर आते हैं हम इस एग्जांपल पे कि इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि इन डिग्री किस वर्टेक्स की क्या है और आउट डिग्री उस वर्टेक्स की क्या है। तो जरा सबसे पहले हम कंक्लूड करते हैं वर्टेक्स ए को। अगर ए वर्टेक्स को आप देखें, इसकी हम इन डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी एरोज आर कमिंग टूवर्ड ए, वन फर्स्ट वन इज दिस। ओके, एक तो ये हो गया, और दूसरा देखें अगर ये एरो आ रहा है, ठीक है ना, जिसका जो टर्मिनल पॉइंट जो है वो ए है आपके पास, सो द डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सिमिलरली व्हाट इज द डिग्री ऑफ बी, डिग्री के डिग्री इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी, तो एन डिग्री वर्टेक्स बी की जो है जरा देखें यहाँ पे कि इसके टर्मिनल कितने एसोसिएटेड हैं एज ए टर्मिनल एजेस। एक तो ये है जी आपके पास, दूसरा क्या है, दूसरा ये है आपके पास, ठीक है जी, इसका टर्मिनल पॉइंट बी होगा आपके पास, तो दो हो गई आपके पास इन डिग्री ऑफ बी। इसी तरीके से इन डिग्री ऑफ सी को ज़रा देखें आप, ठीक है जी। तो हाउ मैनी वर्टिसेस terminates at V, you are seeing that एक तो ये वर्टेक्स एज है, सॉरी, दूसरा ये एज है जिसका टर्मिनल पॉइंट सी है, और इसके अलावा तीसरा ये है आपके पास। सो द डिग्री ऑफ द इन डिग्री ऑफ द वर्टेक्स सी इक्वल टू 3, एंड सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ई के लिए 3 और डिग्री ऑफ एफ इक्वल टू 0। ये देखें, ये जो एफ है आपके पास ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी। अब जरा आ जाए आउट डिग्री। आउट डिग्री ऑफ है कितने जो एज एज कितने एजेस हैं, कितने एजेस हैं जिनके जो है इनिशियल पॉइंट ए है आपके पास। तो ये देखें, एक तो ये हो गया आपके पास, दूसरा ये हो गया आपके पास, तीसरा ये हो गया आपके पास, ठीक है ना जी, ये 3 होगा, और चौथा ये हो गया आपके पास एज। सो द आउट डिग्री ऑफ ए विल बी 4। सिमिलरली द आउट डिग्री ऑफ बी अगर आप देखें तो ए की एज है जिसका ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना जी, तो आउट आउट डिग्री जो होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी आपके पास, बी की 1 हो जाएगी, ठीक है ना जी। इसी तरीके से बाकियों की भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स सी इज, आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स डी इज, एंड आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स ई इज 3, एंड आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट की इन या आउट डिग्री दोनों ही 0 होंगी आपके पास, ठीक है जी। अब जरा आ जाते हैं नेक्स्ट हम कि वही हैंडशेकिंग थ्योरम जो कि हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में पढ़ा है, अब डायरेक्टेड ग्राफ में भी हम वो पढ़ रहे हैं कि सपोज दैट जी द ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, और यहाँ पे एजेस जो हैं वो आपके डायरेक्टेड हैं, ठीक है ना जी। then the in degree will be equal to the out degree, and which will be equal to 1/2 of the total degree of each vertex in the graph, and which equal to the number of edges। ये देख रहे हैं आप, और अगर इसको यहाँ से आप देखें, इन दोनों की इक्वेट करके आप सॉल्व करें तो वही है कि सम ऑफ all the degrees of all the vertices is equal to twice the number of the edges, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ देखने वाली है जो इस तरह में अभी बताई जा रही है कि ये जो आउट डिग्री और इन डिग्री जो है आपके पास, दे आर इक्विवेलेंट, सम ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री, ठीक है ना जी। तो ज़रा देखें कि द फर्स्ट सम काउंट्स द नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, ठीक है ना, यानी जिनके जो है टर्मिनल पॉइंट आपके पास उनका वी बन रहा है, और सेकंड जो है वो आउट गोइंग कर रहे हैं। तो it follows that both sums equal the number of edges in the graph, और वो नज़र आ रहा है कि वही नंबर ऑफ एजेस होंगे आपके पास जो कि भाई प्रीवियस, बल्कि आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसके ऊपर, कि आप इन सब के सम आप करें। सपोज कि यहाँ पे आ जाएं आप कि इनको सारा आप इन डिग्री सम ऑफ 11, ठीक है ना जी, यानी ये कितनी हो गई टोटल इन डिग्रीज वर्टिसेस का, वर्टिस की इन डिग्रीज का सम 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9,
9 + 3 12, सॉरी ये 12 हो जाएंगी आपके पास। और ज़रा इसके नंबर ऑफ आउट गोइंग डिग्रीज भी देख लें वो कितनी बनती हैं। ज़रा यहाँ पे आ जाएं, इनको सम करें। 4 + 1 5, 7, 9 एंड 3 12। तो आप देख रहे हैं कि इस थ्योरम में यही लिखा गया है कि इनकमिंग इन डिग्री और आउट डिग्री दे विल बी इक्वल, and it will be equal to the number of it will be equal to the number of edges. It will be equal to the number of the edges. It's okay. Now, mm, how many number of edges here? You are seeing that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you are seeing that the number of edges are also 12 here. So the handshaking theorem in directed graph is well known, and we have verified this one. Next कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे याद रखने के लिए कि सिंपल ग्राफ में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। एक सिंपल ग्राफ है, एजेस उसमें अनडायरेक्टेड हैं, मल्टीपल एज नहीं अलाउ, लूप्स नहीं अलाउ। मल्टीग्राफ है आपके पास, मल्टीग्राफ में एजेस अगर अनडायरेक्टेड हैं तो मल्टीग्राफ में मल्टीपल एजेस अलाउड हैं लेकिन लूप्स नहीं अलाउड यहाँ पे। सिमिलरली द सूडोग्राफ अनडायरेक्टेड हैं एजेस, तो फिर उसमें हमारे पास मल्टीपल एजेस भी अलाउड हैं और लूप भी अलाउड है। इसी तरीके से सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है, एजेस उसके डायरेक्टेड हैं, ना ही कोई डबल एज होगा, मल्टीपल एज होगा, ना ही कोई लूप होगी। इसी तरीके से डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है तो एजेस डायरेक्टेड होंगे, ठीक है जी, मल्टीपल एजेस अलाउड हैं और लूप भी अलाउड होगी। अच्छा, मिक्स ग्राफ ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इसको नेक्स्ट लेक्चर पे हम रखते हैं कि अंडरलाइन ग्राफ के हवाले से कि डायरेक्टेड है एंड अनडायरेक्टेड उसके अंदर होंगी, तो फिर उसके अंदर मल्टीपल एजेस भी अलाउड होंगे और लूप्स भी अलाउड होंगी, ठीक है जी। नाउ वी कम अक्रॉस द स्पेशल टाइप्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, यानी अनडायरेक्टेड की स्पेशल टाइप्स हैं ग्राफ्स की, जिसमें आपके पास आ जाती है कंप्लीट ग्राफ, साइकिल्स, व्हील्स, क्यूब्स, बाइपैराटाइट एंड कंप्लीट बाइपैराटाइट ग्राफ। तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कि ये कंप्लीट ग्राफ क्या है आपके पास। सो वी हैव डिफाइंड द कंप्लीट ग्राफ। ज़रा देखें यार, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप कह सकते हैं द कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस डिनोटेड बाय के एन इज अ सिंपल ग्राफ। ये बात याद रखने वाली है कि इट मस्ट बी अ सिंपल ग्राफ with n nodes in which every node is adjacent to every other node or every pair of vertices are connected through an edge। कोई भी वर्टेक्स है, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड होंगे। अच्छा, मेनली यहाँ पे इसकी ज़रा मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आप ज़रा देख लें कि फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू ई, यू डज नॉट इक्वल टू वी, यानी लूप नहीं अलाउड। ऐसे नहीं हो सकता कि यू मे बी इक्वल टू वी इफ एंड ओनली इफ यू वी बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ ज़रा देखें, सबसे पहले इसको बाज़ के वन, ठीक है, चले के वन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो वर्टिसेस हैं, दोनों कनेक्टेड हैं, आप देख लें के टू। यहाँ पे तीन वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे चार वर्टेक्स हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है जी, 1 2 3 4, ये देख रहे हैं आप। तो ये आ जाएगा जी कंप्लीट सिंपल ग्राफ एंड डिनोटेड बाय के, और आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से के 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकली। ये देख रहे हैं कि 5 वर्टेक्स हैं इसके और सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से के 6 है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस काउंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसमें सपोज कि कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है, जो काउंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका फार्मूला आसान ये है कि ये इसके जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं
सपोज इस पे अप्लाई करें कि इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, 3 है आपके पास, तो यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करें 3 3 3 इंटू 3 - 1, ओके, 3 - 1/2 एजेस होंगे। तो ये 3 - 1 is 2, 2 into 3 is 6, 6/2 is 3। तो ये देख रहे हैं 3 एजेस आपके पास आ रहे हैं। सिमिलरली यू कैन अप्लाई टू द अदर कंप्लीट ग्राफ्स। ये बात भी याद रखनी है कि ये सिंपल ग्राफ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है कंप्लीट ग्राफ के हवाले से जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो स्लाइड के ऊपर आपके सामने आया हुआ है, ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं कंप्लीट ग्राफ के हवाले से मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंसिडर अ कंप्लीट ग्राफ दिस, कैन ई कंटेन एनी एजेस कनेक्टिंग अ नोड इन वी टू इटसेल्फ। क्या ये जो है कंप्लीट ग्राफ में कोई एज, आप अगर प्रीवियस देख लेंगे इसमें कि कोई भी जो आपके पास बन रहा है वर्टेक्स, वो इट सेल्फ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना जी। तो इट सेल्फ कनेक्टेड हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली फिर अगर कनेक्टेड हो जाता है तो फिर वो इस डेफिनेशन को वायलेट कर जाएगा, और या फिर आप कह सकते हैं कि वो फिर सिंपल नहीं रहेगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना जी, वो सिंपल ही नहीं रहेगा। वेर यू इक्वल टू वी। कैन यू थिंक अ नेचुरल एग्जाम्पल वेयर द कंप्लीट ग्राफ माइट मॉडल द फैक्ट्स? तो ये ऐसे कर सकते हैं, यस जी। पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल, अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड द चेयर्स। ये देखें, ग्राफ्स दैट मॉडल फॉर ग्रुप्स ऑफ एन पीपल विच पीपल आर सीन बाय ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना जी। तो ये उसकी एग्जांपल हो सकती है, यानी एवरी पीपल इज कनेक्टेड विद द अदर, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंपल ग्राफ्स में आ जाते हैं कि साइकिल्स। अब साइकिल की जो डेफिनेशन आपके पास बन रही है यहाँ पे कि साइकिल इट एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये एक चीज़ याद रखनी है। वेयर एन डिनोट द नंबर ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि आपके पास एटलीस्ट 3 वर्टिसेस कम अज़ कम होने चाहिए, तो साइक्लिक ग्राफ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफिनीशन इसकी क्या है कि सी एन इज ए सिंपल ग्राफ वेयर वी सेट ऑफ वर्टिसेस, ई सेट ऑफ एजेस। आप देख रहे हैं कि V1 इज कनेक्टेड थ्रू E1, V2, V3 आर कनेक्टेड बाय ई E2, आप कह दें इसको, ठीक है जी, E2। इसी तरीके से स्वान, यानी इन अदर वर्ड्स के हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ, इमीडिएट वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो, एक साइकिल बना देगा आपके पास, ठीक है ना जी। ये अब ज़रूरी नहीं है कि V1 V3 से कनेक्टेड हो। सपोज यहाँ पे एग्जांपल्स में ज़रा आ जाएं, ये C3 की एग्जांपल को देखें आप। सपोज मैं इसको V1 वर्टेक्स कह देता हूँ, इसको V2 वर्टेक्स कह देता हूँ, और इसको V3 वर्टेक्स कह देता हूँ। और ये एजेस कौन कौन से हैं? E1 एज है, E2 एज है, ठीक है जी, और ये इसको E3 एज हम कह देते हैं, ठीक है ना जी। अब जरा देखें कि सॉरी, V1 अगर V2 से कनेक्टेड है तो V1 V3 से भी कनेक्टेड है, और V2 V3 से भी कनेक्टेड है, तो ये एक पूरी साइकिल बना रहे हैं आपके पास। सॉरी, यहाँ पे ये जो चीज़ मैं कह रहा था कि V1 इज कनेक्टेड टू V2, इमीडिएट वर्टेक्स सारे के सारे कनेक्टेड बन के एक साइकिल बना देते हैं। अब फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर इन सी एन, कितने एजेस होंगे जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे। सपोज यहाँ पे 3 एजेस हैं, 3 वर्टेक्स, यहाँ पे 4 एजेस हैं, 4 वर्टेक्स, यहाँ पे 5 एजेस हैं, 5 वर्टेक्स, यहाँ पे 6 एजेस हैं, 6 वर्टेक्स। तो साइक्लिक ग्राफ में यहाँ इस चीज़ की करेक्शन काइंडली कर लें, ये बेसिकली V1 कनेक्टेड विद V2 है, V2 कनेक्टेड विद V3 है, तो V3 इज कनेक्टेड विद V4 है, एंड V4 इज कनेक्टेड विद V5 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ज़रा ये देख लें कि V1 कनेक्टेड है V2 के साथ, V3 के साथ, ठीक है ना जी, लेकिन V1 कनेक्टेड नहीं है V3 के साथ डायरेक्ट, ठीक है ना जी, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ये एक साइकिल बना रहे हैं जो इमीडिएट के साथ मीटिंग कर रहे हैं ये, ठीक है ना जी, मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम के कुछ क्वेश्चंस उसके हवाले से कि ये जो हमारी साइकिल्स होंगी ये किस, कैन यू थिंक अ नेचुरल एग्जांपल वेयर साइकिल माइट बी मॉडल द फैक्ट्स? यस, फॉर ग्रुप ऑफ पीपल्स which are sitting next to each other on a round table. The best example is this. Can a cycle be a complete graph? कंप्लीट ग्राफ हो सकता है साइकिल क्या?
यानी अब कंप्लीट ग्राफ में तो ये है कि हर वर्टेक्स दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे उसी प्रीवियस स्लाइड पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी मैंने तस्वीर भी की है, कि अगर तीन वर्टिसेस हैं तो वो तो लाजमी आपस में कनेक्टेड होंगे तीनों के तीनों, और अगर तीन से ज़्यादा हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह के ये वर्टेक्स दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, आप देख रहे हैं डायरेक्टली। इसमें यही है कि पहला क्वेश्चन ये है आपके पास कि कैन अ साइक्लिक बी कंप्लीट ग्राफ? यस, साइक्लिक इज कंप्लीट ग्राफ ओनली इफ यू हैव थ्री वर्टेक्स। It is complete now. Every two vertices are connected among each other. लेकिन इसके अलावा अगर मोर देन थ्री होंगे तो फिर कंप्लीट नहीं होगा आपके पास। नो अदर साइक्लिक कैन बी ए कंप्लीट ग्राफ। ठीक है जी, उस मैंने करेक्शन भी कर दी है उसकी। नेक्स्ट चलते हैं हम के स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंपल ग्राफ्स में आ जाते हैं आपको व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ बेसिकली आपके पास जो पहला साइक्लिक ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ के बिल्कुल दरमियान में एक वर्टेक्स को डाल के, यानी कि इधर यहाँ देख लेते हैं कि फॉर एनी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अ व्हील डब्ल्यू एन इज अ सिंपल ग्राफ obtained by taking the cycle Cn and adding one extra vertex which we called a hub vertex। ओके जी, ये जो है आपके पास आप देख रहे हैं कि जो आपका साइक्लिक ग्राफ था, ये हब वर्टेक्स एक आपने उसमें ऐड किए और फिर इसको ज्वाइन करना है सब के साथ, ये देखा आपने, तो ये आपका व्हील ग्राफ बन जाएगा जी। ये देखें यहाँ पे, ये आपके पास वर्टेक्स है, उसके दरमियान हब वर्टेक्स है, ये आया और इस हब वर्टेक्स को सब के साथ आपने ज्वाइन कर दिया, यू विल गेट द व्हील ग्राफ। अब इसकी फिर एजेस की बात आ जाती है कि इसके कितने एजेस हो सकते हैं डब्ल्यू एन के, ठीक है ना जी। तो डब्ल्यू एन के वर्टेक्स के हवाले से आप ज़रा देखें तो ये फार्मूला 2n है, यानी जितने नंबर आपके पास वर्टेक्स थे, हाँ जी, उतने नंबर ऑफ एजेस आपके पास हो जाएंगे। सपोज वर्टेक्स कितने थे यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक है ना जी, ये आ गया, ये आपने इंसर्ट किया, तो अब एजेस कितने होगा, 1 2 3 4 5 and 6, total number of edges are 6। yes, so next one is the n क्यूब ग्राफ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाली चीज़ है कि n क्यूब ग्राफ किस तरीके से, किसको हम n क्यूब ग्राफ कहेंगे। An n-dimensional hypercube or n cube Qn is a graph with 2 raised to power n number of vertices representing all the bit strings of length n, where there is an edge between two vertices that differs exactly 1 bit. For any n belongs to n, the hypercube Qn is a simple graph consisting of two copies of Qn minus 1। तो यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एन क्यूब या हाइपर क्यूब जो आपके पास है ग्राफ है, ये किस तरीके से होता है कि आप प्रीवियस ग्राफ के साथ उसकी कॉपी ज्वाइन करके और बिट डिफरेंस के साथ ज्वाइन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे ज़रा देखें एग्जांपल जो हमने ले रखी है क्यू नॉट, इट कंटेन्स ओनली वन वर्टेक्स, ठीक है ना जी, ये ओनली वन। Q1 स्केच करने के लिए आपने क्या करना है जी, इसी वर्टेक्स के साथ, ये जो आपका एक वर्टेक्स था, इसी वर्टेक्स के साथ एक दूसरा वर्टेक्स, इसकी कॉपी यहाँ पे स्केच कर देनी है और फिर आपने इसको ज्वाइन कर देना है, और इसको 0 बिट और इसको 1 बिट डिफरेंस जो आ गया 1 बिट का आ गया, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट सपोज Q2 आप स्केच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली ये आपकी आ गई है कॉपी, ये तो एज इट इज़ अपनी जगह पे है, इसके साथ एक कॉपी यहाँ पे लगाई गई है, ये वाली, ये ऊपर ये आप देख रहे हैं ये, और किस तरीके से कि इसका जो लीडिंग ज़ीरो एक एक्सटेंड कर दें, यानी कि एक बढ़ा दें यहाँ पे, इससे पहले ज़ीरो लगा दें, इससे पहले ज़ीरो लगा दें, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है ना जी। और इसकी जो कॉपी ऊपर ली गई थी यहाँ पे, उसके साथ क्या करना है आपने, यानी 1 बिट एक्सटेंड कर देनी, यानी इस 0 के साथ 1 आपने लगाया, ठीक है जी, ये 1 0 आ गया, और इस 1 के साथ एक 1 लगाया, तो ये आपके पास 1 बिट आ गया। अब इसमें से जितने भी वर्टिसेस जो हैं जो 1 बिट से डिफर कर रहे हैं, उनको आपस में आपने ज्वाइन कर दिया। ये देख रहे हैं इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ठीक है जी, 1 बिट डिफरेंस है, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, 1 बिट डिफरेंस है,
इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, वन वन बिट डिफरेंस है, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, वन बिट डिफरेंस है। तो आप इसको इसको इसके साथ नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि टू बिट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से फिर इसकी कॉपी आप उठाएंगे। ठीक है जी भाई, जो है आपके, इट्स ओके, लेकिन ये थोड़ा सा कर दो, चूंकि माउस से मैं कर रहा हूँ तो ये ज़ीरो की जगह पे वन आ गया है। बहरहाल आप इसका आइडिया अंडरस्टैंड कर गए हैं कि बेसिकली ये डबलिंग हो रहा है, कॉपी हो रहा है, उसकी कॉपी उसमें ऐड होती जा रही है और नेक्स्ट आ रहा है। इसी तरीके से इसकी कॉपी जब आप जहाँ पे ऐड करेंगे बाय एक्सटेंडिंग वन बिट्स, लीडिंग वन बिट, इसमें आपने किया लीडिंग वन बिट, इसमें आपने किया लीडिंग वन बिट, आप करेंगे तो 0 1 0 ये कहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आ गया आपके पास। इसका ज़ीरो किया आपने एक्सटेंड तो 0 1 1 ये आ गया, ये आपके पास ओल्ड वन था। अब इसकी कॉपी आपने जो की है, ये की है कॉपी इसकी, यानी ये 0 0 0 था, इसका एक बिट वन यहाँ पे लगा दिया, ये 1 0 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 1 1 आपका शिफ्ट हो गया और ये 1 1 0 हो गया शिफ्ट। फिर आपने कनेक्ट किया जो वन बिट डिफरेंस से आ रहे थे आपके पास, ये देख रहे हैं आप, हमने वन बिट डिफरेंस है, इनको कनेक्ट करके आपके पास एन क्यूज ग्राफ बन जाएगा जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, विच वी कॉल इट बायपैराटाइट ग्राफ। के बायपैराटाइट ग्राफ मीन टू पार्ट, पैराटाइट मीन partition, you are going to do the partition into two disjoint number of vertices। ठीक है जी। यानी सेट ऑफ वर्टिसेस, आपको आपके पास कोई एक ग्राफ है और अगर ये आप उस ग्राफ के दो डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टिसेस में उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, तो फिर हम उस ग्राफ को कहेंगे कि ये बायपैराटाइट ग्राफ है। मैथमेटिकली सपोज दैट कि जी आपके पास एक वी ग्राफ है, उसको आप बायपैराटाइट कहेंगे। ये देखा आपने, V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल टू एम्प्टी फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू ई एजेस की कनेक्शन किस तरह होगी कि ईच एज जो कनेक्ट करेगा वो टू डिफरेंट सेट ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि दो वर्टिसेस V1 में थ्रू E1 कनेक्ट हो जाएं। ठीक है ना जी। तो पार्टीशन है, जरा यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स आपको यहाँ नहीं नजर आएगा, ये देख रहे हैं, सिमिलरली यहाँ नहीं नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये आपके पास फ्री हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये वर्टेक्स एक फ्री है, डजंट मैटर, इट डजंट वायोलेट द डेफिनेशन ऑफ द बायपैराटाइट ग्राफ। सो वी कैन इजीली डिसॉल्व द सेट ऑफ वर्टिसेस इनटू टू डिसजॉइंट वर्टिसेस। ओके ना जी। तो ये ज़रा देख सकते हैं आपके, in human the graph can be divided into two parts in such a way that all edges go between them। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया जा सके ग्राफ, जिसके एजेस जो हैं आपके पास दोनों पार्ट्स के दरमियान आ जाएं। एक तरफ वर्टिसेस V1 है, दूसरी तरफ साइड V2 है, तो V1 से V2 की तरफ एजेस जो हैं वो कनेक्ट हों। ठीक है ना जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को एक मरतबा फिर भी पढ़ रहे हैं कि सिंपल ग्राफ जी इज अ बायपैराटाइट इफ V कैन बी पार्टीशनड इनटू टू डिसजॉइंट सबसेट्स V1 and V2 such that every edge connect a vertex in V1 and a vertex in V2। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको मेरे ख्याल में। ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट जरा चलते हैं हम कि बायपैराटाइट की इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या हो सकती है। कि बायपैराटाइट क्या है जी, आपके पास equivalence definition के where it is possible to color the vertices red or blue so that no two adjacent vertices are the same color। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कलर्ड हुए भी हुए हैं, ये देखें जरा, ये रेड है, इसका एडजेसेंट ब्लू है, ये अगर ब्लू है तो इसका एडजेसेंट रेड है। तो हमने जरा इसको पहले यूं कर, ठीक है जी। फिर इसका जो है एडजेसेंट आपके पास, ये रेड है, ये ब्लू हो गया, ठीक है जी। ये रेड है तो ये ब्लू हो गया आपके पास। तो वी कैन इजीली कलर द ग्राफ such that no two adjacent vertices have the same color। लेकिन अगर इस ग्राफ पे अगर देखें कि सपोज हम यहाँ से इस एच ग्राफ को, जो कि बायपैराटाइट नहीं है, सपोज कि हम ए को करते हैं रेड, इसको हम रेड करते हैं, हाँ जी, इसके एडजेसेंट को ब्लू करते हैं, ये ब्लू हो गया।
ये ब्लू हो गया, फिर रेड हो गया, ठीक है जी, और फिर ये आपके पास ब्लू हो गया, फिर ये रेड हो गया जी, ठीक है जी, फिर ये ब्लू हो गया। अब ज़रा देखेंगे क्या ये बाइपेराटाइट था। अगर बाइपेराटाइट था तो दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर का नहीं होना चाहिए था, और ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों के सेम कलर आएंगे। तो दैट वाई नॉट एवरी ग्राफ इज अ बाइपेराटाइट ग्राफ, ठीक है ना जी। अब इसकी एग्जिस्टेंस की तरफ देखते हैं कि इस बाइपेराटाइट को किस तरीके से पार्टीशन की जाती है उन वर्टिसेस में। सपोज कि आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे जरा देखें कि for example when you are modeling a domain that consists of two different kind of entities. नंबर वन, सपोज के एक साइड पे एनिमल इन द जू है और द पीपल दोज आर कीपिंग देम, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड्स linked with the number of letter in them, equal number of letters, ठीक है ना जी। इसी तरीके से लॉजिकल फार्मूला एंड सो ऑन। और कुछ क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ जाते हैं, कैन यू थिंक ऑफ द ग्राफ विद टू वर्टेक्स दैट इज नॉट बाइपार्टाइज्ड। क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक ग्राफ के दो जो हैं वर्टेक्स हैं और वो बाइपैराटाइट जो है ना हो। बिल्कुल हो सकता है जी, क्योंकि ऐसे कि उसके अंदर अगर लूप एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो बाइपैराटाइट नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे जब भी इसको आप डिसजॉइंट करने की कोशिश करेंगे, सपोज V1 को V2 से जुदा करेंगे तो एजेस V2 टू V2 आ जाएगा। अगर आप इसको यूं करना भी चाहें तो सपोज V1 को हम अगर यहाँ रख दें और V2 को यहाँ रख दें, तो आप देख रहे हैं ये तो ठीक है कि एक एज जहाँ से डिफरेंट ये आ गया आपके पास, लेकिन दूसरा जो है ये एज V2 टू V2 भी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे V2 फिर लिख के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ लूप की वजह से मामला जो है वो बाइपैराटाइट की तरफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिंपल ग्राफ विद टू वर्टिसेस दैट इज नॉट। अब बाइपैराटाइट, हाँ अब सिंपल है अगर और दो वर्टेक्स है, सिंपल है तो फिर उसमें लूप नहीं अलाउड। हाँ जी, उसमें लूप नहीं अलाउड तो फिर ठीक है, वो मिसाल के तौर पे V1 है और V2 दो वर्टिसेस हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं जी, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है ना जी। दोनों वर्ड तो ये तो ज़रूर बाइपैराटाइट होगा जी कि आप इसकी डायग्राम में V1 को एक सेट ऑफ वर्टिस में रिप्रेजेंट करके और दूसरे को V2 को दूसरे सेट ऑफ वर्टिस में पढ़ते। कैन यू थिंक अ सिंपल ग्राफ विथ थ्री वर्टिसेस एंड अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एजेस दैट इज बाइपैराटाइट। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं ये कि सिंपल ग्राफ है विथ थ्री वर्टिसेस हैं एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एजेस दैट इज बाइपैराटाइट। बिल्कुल यस, एज लॉन्ग इट इज़ नॉट कंप्लीट, अगर ये कंप्लीट ना होगा तो। सपोज कि आपके पास तीन वर्टिसेस हैं, ये इस क्वेश्चन में यानी एक्सप्लेन के लिए मैंने ये चीज़ें डाली थी कि ज़रा वाज़ेह हो जाए। V1 V2 V2 और V3 है, तो ये अगर कंप्लीट होगा तो ये बाइपैराटाइट नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप इनको डिफरेंट, अगर V1 V2 को करेंगे, हाँ जी, ऑपोजिट साइड पे रखें ज़रा, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 को आप रख लें, ठीक है। V1 V2, ठीक है। अब V3 को आप अगर यहाँ रखेंगे तो फिर V1 के साथ कनेक्ट करता है ये V3, सो इट इज़ नॉट अ बाइपैराटाइट अगर तीन वर्टिसेस हैं और वो कंप्लीट ग्राफ है। नेक्स्ट जरा देखें कि एग्जांपल के हवाले से कि हम ये प्रूव करेंगे कि शो दैट C6 इज अ बाइपैराटाइट। तो C6 सपोज कि ये है आपके पास V1 V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स, V5 वर्टेक्स, ठीक है जी, एंड V6 वर्टेक्स, ठीक है जी। अब इसकी पार्टीशन आप करेंगे तो किस तरह करेंगे आप जी कि V1 V3 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आप उठा लें, V1 V3 और V5, ये यहाँ पे आ गए जी आपके पास V1 V3 V5 और V2 V4 V6 यहाँ पे आ गए आपके पास। फिर इनको आपने आपस में ज्वाइन कर दिया कि V1 इज कनेक्टेड विद, हाँ जी, V1 इज कनेक्टेड विद V2 एंड V1 इज आल्सो कनेक्टेड विद V6। ये देख लिया आपने, तो टू डिफरेंट सेट ऑफ वर्टिसेस में आपने इसको डिजॉल्व कर लिया है। पॉसिबल था आपके पास कि V1 इक्वल टू V1 V3 V5 और V2 कंसिस्ट ऑफ दीज। सिमिलरली ये जो फिर वही बात कि शो दैट C3 इज नॉट अ बाइपैराटाइट, क्योंकि C3 कंप्लीट है, ये प्रीवियस एक्सप्लेन हो चुका है, ये बाइपैराटाइट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी कंप्लीट बाइपैराटाइट ग्राफ।
अब कंप्लीट बाइपैराटाइड ग्राफ जो है आपके पास, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी के एम एन के साथ। इज द ग्राफ दैट हैज इट वर्टेक्स सेट पार्टीशन इनटू टू सबसेट V1 ऑफ साइज m, V2 ऑफ साइज n, ठीक है ना जी, such that there is an edge from every vertex in V1 to every vertex in V2। तो ये डेफिनेशन मजीद फिर उस कंप्लीट बाइपैराटाइट की है आपके पास, मैथमेटिकली हम उसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ज़रा, आपके पास जो सामने डायग्राम है इसमें जो है आपके पास ये K4 3, यानी एक के पास सेट ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, ठीक है जी, और दूसरे के पास सेट ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, आपके पास 3 है। तो ऐसा ग्राफ जैसे कि वर्टिसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए और इस तरीके से कि जो डिसजॉइंट आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस में जब डिवाइड कर लें तो हर वर्टेक्स जो है दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो, उसका कनेक्शन हो, ये देख रहे हैं आप। लेकिन आपस में ये नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप कि बाइपैराटाइट में कभी भी ये जो वर्टिसेस हैं एक सेट में वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एक नोट मैंने लिखा है कि सी बी जी इज कंप्लीट, नॉट एवरी सी जी, यानी कंप्लीट बाइपैराटाइट ग्राफ इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। क्योंकि ये जो था बेसिकली तो आपके पास वर्टिसेस ये थे कि V1 यूनियन V2, V1 यूनियन V2 पे V2 थे, तो ये आपस में तो बहुत सारे वर्टिसेस ऐसे थे जो कनेक्टेड नहीं थे। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट बाइपैराटाइट ग्राफ। ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल्स मजीद हम मैंने सामने रखी हैं कि K2 3 5 यानी 2 वर्टिसेस, ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया V को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया V1 और V2 में, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया आपके पास, ठीक है ना। इसी तरीके से ये K3/3 है, तो ये 3 वर्टिसेस आ गए आपके पास, एक जो है सेट ऑफ वर्टिसेस V1 में सपोज, और ये आ गया आपके पास V2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके बाइपैराटाइट ग्राफ जो है आपके पास बन रही है, V1 है, V2, इसमें भी सेट ऑफ वर्टिसेस 3 हैं, और ये आ गया आपके पास 1 2 3। तो ये V1 जो है आपके पास 3 वर्टेक्स हैं, V2 जो है जो आपने सेपरेशन की है वर्टिसेस की वो कितने बनते हैं जी आपके पास 1 2 3 4 5 बनते हैं, तो K3 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल टॉपिक जो अब आ गया है जी सब ग्राफ्स के हवाले से। A subgraph of a graph G is a graph this WF where each where the vertices of W is contained in the vertices of G. Okay, sorry, W vertices are contained in V and the edges F are contained in E. तो आपका जो है सब ग्राफ, इसको जरा मैं एक सेकंड नाम दे देता हूँ, जैसे H is a सब ग्राफ ऑफ G if every edge and every vertex is taken from G. Yes, okay जी, like that के इधर देखें कि a subgraph H of is the proper subgraph of G if H is not equal to, here we show that K5 and one of its subgraph, उसका ये K5 है जी आपके पास कंप्लीट ग्राफ है। इसमें से आपने सिंपल कौन सा पोर्शन उठा लिया जी, ये देख रहे हैं आप, ये आया जी आपके पास, फिर ये, ठीक है जी, दिस वन एंड दिस वन, तो ये इसका सब ग्राफ है। आप जरा देखेंगे ये जो ये इटसेल्फ ग्राफ है और ये ग्राफ कंटेन कर रहा है इस ग्राफ के अंदर, ठीक है ना जी, ये ग्राफ इसके अंदर कंटेन कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो यानी कि इसमें से ही आपने निकाला है, या इन अदर वर्ड्स दिस इज कंटेन्ड इन जी एच, अगर इसको हम एच कह दें और इसको हम जी कह रहे हैं, तो आप उसके तरह देखेंगे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और एजेस, एजेस जहाँ भी हैं वही एजेस हैं, उसी तरीके से वर्टेक्स लाई कर रहे हैं इनके आपस में, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज द इंड्यूस्ड सब ग्राफ है, कि इंड्यूस्ड सब ग्राफ भी है यहाँ पे, कि हम कोई सपोज पहले इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं, लेट जी इज इक्वल टू वी द सिंपल ग्राफ, द सब ग्राफ induced by the subset omega or subset W of the vertex set V is the graph WF where the edges set F contains an edge in E if and only if
both endpoints are in W. We call it largest possible subgraph. अच्छा जी, ये जो इंड्यूस सबग्राफ है यहाँ पे से सपोज कि आपका ये के 5 ही हमने ले रखा है यहाँ पे। इंड्यूस सबग्राफ कैसे होगा कि सबसे पहले हमने इसके कौन कौन से वर्टिस उठाए, ए बी सी और ई। फिर उसके बाद जितने भी इन अमंग ए बी सी ई के अमंग जितने भी वर्टिसेस हैं वो भी सारे साथ ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ज़रा देख रहे हैं आप, ये ए बी सी ये देखा आपने। तो इंड्यूस्ड हम बेसिकली कुछ वर्टेक्स चांद उठा लेंगे, लेकिन जितने भी एजेस थे वो सारे के सारे एजेस जो उस ग्राफ जी में थे, पेरेंट ग्राफ में थे, वो सारे के सारे मैनिपुलेट करना पड़ जाएंगे। यानी इन अदर वर्ड इट विल बी द लार्जेस्ट सब ग्राफ कंटेंट इन अ ग्राफ जी। लेकिन इसके बरक्स देखें जरा, ये भी तो हमारे पास एक इसी का ही सब ग्राफ था K5 का, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं था। इसका हर एज जो थे, ये देखें ये यहाँ पे एज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि वहाँ पे पेरेंट ग्राफ में एज कर रहे। नो डाउट ये सब ग्राफ तो था, लेकिन ये इंड्यूस सब ग्राफ नहीं था। ठीक है जी। तो फाइनली आ जाता है न्यू ग्राफ्स फ्रॉम ओल्ड वन, के हमारे पास अगर दो ग्राफ्स हैं सपोज G1 और G2 हैं, तो हम किस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन करके दूसरा ग्राफ जनरेट कर सकते हैं कि हम सेट ऑफ वर्टिसेस को यूनाइट करेंगे और सेट ऑफ एजेस को। ठीक है नहीं, तो हमारे पास जो हासिल होने वाला आएगा दैट विल बी G1 यूनियन G2। आप जरा देखें यहाँ पे G1 है G2 है, इस वर्टिसेस पे गौर करें, ए बी सी और साथ ये ई आ गए, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, एफ है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यूनाइट कर दें, तो आपके पास हासिल होगा न्यू ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे यूनियन से, और ये भी इट सेल्फ ग्राफ होगा। और ये सारे के सारे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट उसके सब ग्राफ्स उसमें लाया करेंगे। थैंक यू।